سنیے گا، نہمیہ کی کتاب 4 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے پہلے 7 آیت کو، پھر 4 باب کی 8 آیت مقدسہ کو، پھر 4 باب کی پہلی آیت مقدسہ کو، پھر 4 باب کی 13ویں آیت مقدسہ کو، اور پھر نہمیہ 4 باب کی 17ویں ورس کو۔ ایک ہی چیپٹر میں یہ مختلف ورسز ہیں جو آج ہم تلاوت کریں گے، اور دھیان سے سنیے گا، توجہ ادھر رکھیے گا آج کے کلام کو سننے کے لیے۔ بولیے آپ تیار ہیں؟ اونچی آواز میں بتائیے تیار ہیں؟ آمین۔ آئیے نہمیہ 4 باب کی پہلے ہم پڑھیں گے 7 آیت مقدسہ۔ پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے۔ اونچی آواز میں بولیے وہ جل گئے، وہ جل گئے۔ آگے 8ویں ورس میں لکھا ہے اور سبوں نے مل کر بندشیں باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور پریشانیاں پیدا کریں۔ سب اونچی آواز میں بولیے پریشانیاں پیدا کریں۔ پریشانیاں پیدا کریں۔ 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصے ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا۔ بولیے ٹھٹھوں میں اڑانے لگا۔ آگے 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا۔ اونچی آواز میں بولیے بٹھا دیا۔ 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھونڈتے تھے، لکھا ہے ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا اور دوسرے میں ہتھیار لیے رہتا۔ سب لوگ ہتھیار لیے رہتا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت رکھے۔ اونچی آواز میں مل کر بولیے آمین۔ عزیزو بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ ہاللویا۔ آج نہمیہ کی سٹوری سے ہم بہت سی بابرکت باتوں کو سیکھنے والے ہیں، اور عزیزو آج یاد رکھیے خدا کو نہمیہ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایمین۔ نہمیہ جیسے لوگوں کی آج خدا کو ضرورت ہے۔ اپنی فکر نہ کر کے خدا کا کام کریں۔ میں نے کہا اپنے گھر کا کام چھوڑ کر خدا کے راج کو، اس کی کنگڈم کو بڑھانے کے لیے وہ کام کرنا شروع کرے۔ ہم نے بائبل میں یہ پڑھا ہے عزیزو، نہمیہ اس سے پہلے کہ خدا کے کام کے لیے جاتا اس کی لائف مست لائف تھی۔ اس کی لائف بولیے مست لائف تھی۔ وہ بائبل کہتی کمفرٹیبل لائف جی رہا تھا، ہر طرح کا سکھ تھا اس کی لائف میں، اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن۔ کیونکہ اگر آپ نہمیہ پہلا باب اس کی پہلی آیت میں پڑھو گے نا تو بائبل کہتی وہ قصر سوسن میں رہتا تھا، فارسی بادشاہوں کے محل میں رہنے والا بندہ۔ سوچو جس کی اپنی لائف اتنی مست ہے، اور وہ بائبل کہتی ہے وہ خدا کے گھر کا سوچ کر اپنے سکھ کو اس نے بو دیا، میں کہتا ہوں اپنے آرام کو، اپنی کمفرٹیبل لائف کو خدا کے کام کے لیے بو دیا۔ میں آج آپ کو دعویٰ کرنے کو تیار ہوں، اگر خدا کسی کی فائنینس پر ہاتھ رکھ دینا کہ یہ میرے کام کے لیے بو دے تو 100 سوال کھڑے ہوں گے۔ وائی؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ میرے لیے کیوں ہے؟ خدا ہم میں سے کسی کی گاڑی، کسی کا پلاٹ، کسی کا پیسہ، کسی چیز کو اپنے مہمہ، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے بول دے، سوال ہوگا، اور ایک نہیں کئی سوال ہوں گے۔ خدا میں ہی تنو لبیا اتنی محنت کر کے یہ سب اکٹھا کیا ہے۔ بائبل مقدس یہ بتا رکھی ہے عزیزو، آپ سوچو نہمیہ نہ تو کوئی لیڈر ہے، نہ بائبل بتاتی وہ کاہن ہے، نہ لاوی ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ بائبل کہتی ہے وہ کوئی بہت بڑا سورما ہے، بس ایک عام سا سرکاری ملازم ہے۔ ایسا ہے بہن شازیہ؟ عام سا بولو سرکاری ملازم ہے، اور خدا ایک سرکاری ملازم سے بات کر رہا ہے کہ دیکھ یروشلم کی فصیل ٹوٹی پڑی ہے، اور وہاں میرے لوگوں نے اپنے آپ کو اس ٹوٹے پڑے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور میں نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ابراہیم کی نسل ہے،
तो इनको बदलना चाहिए। लेकिन ये सोचो, वो आदमी जो हजारों किलोमीटर दूर है, खुदा उससे बात कर रहा है कि यरूशलेम को गिरा नहीं रहना चाहिए, उसकी फसील को टूटा रहना नहीं चाहिए, उसे बनना चाहिए। और बाइबल ये बताती है अजीजो, नेहमिया लिखा है खुदा के घर में, कसरे सोसन में खुदा की आवाज को उसने सुना और वो रोया, वो चलाया, उसने रोजे रखना शुरू कर दिए, दुआ करना शुरू कर दी। उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बताइए किसके लिए रोजे चल रहे हैं? अपने लिए? क्या बीमार है, क्या गरीब है, क्या बेरोजगार है, किस चीज की कमी है उसकी लाइफ में? किसी की नहीं। और बाइबल ये बता रही है इसके रोजे, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ोगे ना तो लिखा है उसने यरूशलेम का हाल पता करके रोना शुरू कर दिया, मातम करना शुरू कर दिया, दुआ करना शुरू कर दी और रोजे में चला गया। आप ये सोचो, खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज सच में हमें बाइबल के अंदर ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो औरों के लिए रो रखे गए, जो औरों के लिए गम कर रखे गए, जो औरों के लिए दुआ कर रखे गए। मुझे बताइए, अकेले स्वर्ग जाना चाहते हैं क्या? मोहल्ले गली को नहीं लेके जाना क्या? अपने परिवारों को नहीं लेके जाना? अगर अकेले जाना है तो हमसे ज्यादा सेल्फिश नहीं है फिर कोई इस जमाने में, क्योंकि जो पा लिया है ना बस उसको अपने तक ही रखा है। जबकि बाइबल ये कहती है जो अच्छी चीज तूने पाई है उसको दूसरे के साथ बोलिए, शेयर कर, उसे बता। इसलिए मैं बता रहा हूं कि नेहमिया आज की कलीसियाओं को एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता है। सबको अपनी अपनी फिक्र है, किसी को खुदा के घर की फिक्र नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है, सेट है, लेकिन कौन खुदा के काम का सोचेगा? आज याद रखो, छोटी मीटिंग हो के बड़ी मीटिंग हो, गली मोहल्ले की कॉर्नर मीटिंग्स हो, कोई भी क्यों ना हो, खुदा तलाश करता है नेहमिया की स्पिरिट के लोग, नेहमिया के जज्बात जैसे लोग, नेहमिया के जैसे लोग जो खुदा का काम करने को तैयार हो। और मेरी ये दुआ है, अगर आप इस मैसेज को और नेहमिया के एग्जाम्पल को आप अपनी लाइफ के लिए रिसीव करते हो तो फिर जो नेहमिया कर पाया वो यीशु मसीह के नाम में आप भी कर पाओ। आमीन। आने वाला सुख आपको दिख पाए, मैंने कहा हेवनली ब्लेसिंग्स आपको दिख पाए। और जब आपको मूल पे करने के लिए खुदा बोले तो रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ भी आपको रोक ना पाए, क्योंकि वो चीजें आपका वेट कर रखी है और खुदा चाहता है यहाँ की बोना शुरू कर दो। और मेरी ये दुआ है कि आप ऐसा कर पाओ। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, मैंने कहा हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि नेहमिया ने जैसे ही खुदा की आवाज को सुना तो लिखा है उसने स्टेप लिया। और स्टेप क्या लिया? अब वो कह रहे खुदावन मैं बादशाह से दुआ करूं तो वो मुझे छुट्टी दे दे। आपको पता है यरूशलेम के अंदर वो तकरीबन 12 साल रहा था। 52 डेज के अंदर यरूशलेम की फसील बना दी, लेकिन बकाया काम वो 12 साल करता रहा। आप मुझे बताओ 12 साल की कुछ छुट्टी दे सकता है? छुट्टी मिल सकती है यार आपको 12 साल की? और बाइबल ये कहती है इंसान की किताब में कि बादशाहों के हाथ खुदा के हाथ में गए, बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में गए, वो ही उन्हें मोड़ देता है। और इस वर्ष को, इस भेद को नेहमिया जानता था। उसने कहा खुदा मैं तेरा काम करना चाहता हूं पर मुझे छुट्टी चाहिए। और लिखा है उसने दुआ करना शुरू की। और जब वो बादशाह के घर उसके दरबार में था तभी बाइबल कहती है उसने इस मकसद को बयान कर दिया। और लिखा है फेवर हेवन से उसके लिए जारी हो चुकी थी। बादशाह ने कहा जो कुछ तुझे चाहिए, लकड़ी, तुझे सोल्जर या और भी जो कुछ चाहिए, इवन ये कि उसे जब भेजा है तो वहां का गवर्नर बना के भेजा है। अब बाइबल में पढ़ लेना, वहां का वो हाकम था। अब सोचो, है आम सा सरकारी मुलाजिम। बाइबल कहती है जब बादशाह ने वहां उसे भेजा, 12 साल की छुट्टी दी, एक लेटर उसे दिया कि मैं इसे यरूशलेम में बतौर गवर्नर भेज रहा हूं, ये कमांड करेगा और लोग इसके मती होंगे। इसलिए तो लिखा है कि खुदा ने उसकी दुआ का आंसर जब जारी किया वो पोजीशन में भी सेम नहीं था।
अख्तियार में बढ़ गया, अथॉरिटी में बढ़ गया। लेकिन ये तो सोचो ना कि उसने अपना सुख बो दिया, अपना आराम, अपना पैसा, हर वो चीज जो उसके साथ जुड़ी थी, बाइबल कहती है खुदा के काम के लिए बोया कि नहीं बोला? बोलो यस के नो? आमीन। अब खुदा ने फेवर दी है उसे, हाकम के तौर पर, गवर्नर के तौर पर वहां पर वो गया है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खुदा के फजल से जब वो यरूशलेम में पहुंचा, अब यरूशलेम के लोग जिन्होंने टूटी फूटी कब्रों और यरूशलेम के फसील के साथ और यहूदा के उस इलाके को जो उजड़ चुका था, अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, बाइबल कहती है इसने उन लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी, बाइबल कहती है, मीटिंग मुनक्कद की, और जो प्रचार उसने किया ना, बाइबल कहती है उस प्रचार ने लोगों के दिलों को मोल ले लिया। ऐसा बाइबल कहती है उसके लफ्जों के अंदर खुदा ने कन्विंसिंग पावर को जारी किया कि सब लोगों ने उसके साथ एका करने का, इत्तेफाक करने का इजहार किया, हम तेरे साथ हैं और यरूशलेम को बनाने के लिए जो जो चाहिए हम तुझे देंगे, हम तेरे साथ हैं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। लेकिन एक चीज है ना जो गैर मुतवक्को हुई है, यहाँ पर 6 काम हुए। नंबर 1 जलने वाले आ गए, नंबर 2 गुस्सा करने वाले आ गए, नंबर 3 ठट्ठों में उड़ाने वाले आ गए, नंबर 4 बंदिशें बांधने वाले आ गए, नंबर 6 5 नंबर लड़ने वाले आ गए, और नंबर 6 परेशानियां पैदा करने वाले आ गए। आपको लगता है कि नए यरूशलेम की तरफ बढ़ना आसान है? अजीजो, अगर नेहमिया यरूशलेम पे काम कर रहा है तो ये 6 काम उसे फेस करना पड़े। अगर आज आप भी याद रखो नए यरूशलेम की ओर बढ़ना शुरू करोगे तो ये सोचकर चलना जलने वाले भी आएंगे। आमीन। मैंने कहा लड़ने वाले, गुस्सा करने वाले, बंदिशें बांधने वाले, आपके लिए रुकावटें और परेशानियां पैदा करने वाले लोग भी आएंगे। लेकिन एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जो आज का हमारा टॉपिक है, डोंट रिट्रीट, कि आप बोलिए पीछे मत हटना। आमीन। बोलो पीछे मत हटना। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो डोंट रिट्रीट, पीछे मत हटना। हम बाइबल में ये बताते हैं नेहमिया, आप मैं बता रहा हूं, उससे लोग जल रहे थे, लोग गुस्सा कर रहे थे, लोग उसके काम में बंदिशें, रुकावटें, झगड़ा, परेशानियां सब पर पैदा कर रखे गए। लेकिन नेहमिया एक चीज जानता था कि मुझे पीछे नहीं हटना है। और ये एग्जाम्पल है आज की कलीसियाओं के लिए, एक रियल क्रिश्चियन के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि जब आप आगे मसीह में चलना चाहते हो, जब आप पार जाना चाहते हो तो तूफान आएंगे। बोलो हाँ के ना? मैंने कहा आपको रोका जाएगा, बैरियर्स आएंगे, खिलाफत होगी, परेशानियां पैदा की जाएंगी। लेकिन ये याद रखना, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो तो इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। मैंने ये सीखा है, अगर जिंदगी को जरूरत के हिसाब से जीना है तो जैसे जी रहे हो बस जीते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर इस धरती पे आपको इतिहास लिखना है, आपको हिस्ट्री बनानी है, आपको कुछ बड़ा करना है, इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना? खिलाफत होगी, मैंने कहा टेंशनें पैदा होंगी, मैंने कहा बैरियर्स आएंगे, आपको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, जो आप कर रहे हो ना, और ये तो नहीं हो सकता है, और ये कैसे कर रहे हो, ये तो बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन जब आप कर लोगे फिर वही लोग बोलेंगे आपने कैसे कर लिया, हमसे तो होता नहीं है, आपने कैसे कर लिया। लेकिन ये बता रहा हूं कि आपको खुदा ने बड़े कामों के लिए बुलाया है, और बड़े काम आप जब तक मूल्य पे करना नहीं सीखोगे, प्राइस पे करना, कीमत अदा करना, जब तक ये नहीं होगा कुछ भी बड़ा लाइफ में नहीं होगा। क्योंकि हर कुर्बानी के बोलिए अजर है, हर कुर्बानी का। पास्टर जी एक ही चीज हमेशा बोलते थे कि कुर्बानी का अजर है। हालेलुया। सो अजीजों, मैंने कहा इससे पहले कि नेहमिया की जिंदगी में ऐसा ये सब नहीं था। क्या कोई मुखालफत करने वाला था भाई परवेश? क्या कोई विरोध करने वाला है? कोई टेंशन है लाइफ में? दरबार में सारे उसकी खुशामदी करने वाले गए। आप ये सोचो, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर के करीब होगा तो जब आम लोगों में जाएगा तो मुझे बताइए लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? भाई इसके साथ साथ रहो, कभी मुश्किल पड़ी तो ये बंदा काम आ जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो दरबार में उसकी लाइफ ऐसी थी।
बाइबल ये बताती है नेहमिया कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, मस्त जीवन जी रहा है, और कोई ना तो जेलसी करने वाला, ना ठट्ठा उड़ाने वाला, ना गुस्सा करने वाला, लेकिन जैसी खुदा का काम करने के लिए निकला है, अब बाइबल कहती है शैतान को प्रॉब्लम हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? आप ये सोचोगे, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं जब मैं मसीह में नहीं ना था तो बड़ा चंगा था, क्योंकि बिजनेस बड़ा सट जा रहा था, परिवार बड़ा सट जा रहा था, मैं बड़ा सट जा रहा था। जदों दा मसीह नूं कबूल कीता है, मैं बाइबल पढ़नी शुरू की, मैं चर्च जाना शुरू किया, सब कुछ मेरा तंग होके रह गया। लोग ऐसा सोचते हैं, बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन अजीजों, जो रास्ता आपने चुना है ना, मैं आपको दावा करता हूं कि जो आपके हरीफ है ना, वो कोई बाहर की सिचुएशन यूज करके आपको उस ट्रैक से हटाना चाहता है। वो आपके हालात बिगाड़ कर, वो हमारी स्टोरी बिगाड़ के, बैरियर्स खड़े करके वो चाहता है दुआ करना बंद कर दो और खुदा के खिलाफ बोल के हट जाओ, इस ऑल्टर को छोड़ दो, क्योंकि वो ऑल्टर की पावर को जानता है। आप अपने मजबा की पावर को शायद जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन डेविल जानता है। इसलिए मैंने कहा नेहमिया ये सिखाता है कि जो कुछ करने के लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया है, ये समाज तुम्हें वो करने नहीं देगा, ये लोग तुम्हें करने नहीं देंगे, और अगर तुमने लोगों की परवाह की तो वो खो दोगे जिसके लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया। मुझे बताइए बहन, क्या नेहमिया के पास वापस जाने का मौका था कि नहीं? था कि नहीं? नेहमिया कहता खुदावन मैं तेरे काम के लिए आया हूं, क्योंकि हम ऐसे ही सोचते हैं, खुदावन मैं तेरे काम के लिए आया हूं तो विरोध तो नहीं ना होना चाहिए, लोग तो खुश होने चाहिए, मैं तो इनका काम करने के लिए आया हूं, और देख मैं अपनी लाइफ में मस्त था। आप नेहमिया की पहली और बाद की लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क देखते हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, तूबिया और सुनबलत ने कई बार, याद रखना, नेहमिया को मारने का, कत्ल करने का प्लान किया। विरोध, याद रखना, जलने से, गुस्से से, ठट्ठों से, लड़ने से, परेशानियां और बंदिशों से आगे निकल गया है। कहां तक जा पहुंचा है? इसका कत्ल कर दो। और कई बार नेहमिया को किसी खुफिया मीटिंग के लिए, आओ मैदान में कोई बात करना चाहते हैं, आओ फलाने के घर में कोई बात करना चाहते हैं, और तभी खुदा उससे इस भेद में बात कर देता था कि मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां कत्ल का प्लान चल रहा है। अजीजों याद रखो, कहते हैं कि अजीजों कि जब भी अंधों की बस्ती में कोई आंखों वाला आएगा तो अंधों को बोलो प्रॉब्लम होगी। यस के नो? यस, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सभी अंधे थे ना। यरूशलेम बिगड़ा पड़ा है, बाइबल कहती है यहूदा उजड़ा पड़ा है, यरूशलेम की फसील टूटी पड़ी है और किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन एक आंखों वाला उनके बीच में आया है और कहता है ये तुम्हें दिख नहीं रहा, ये खुदा की शर्मिंदगी है, यरूशलेम की शर्मिंदगी है कि हो खुदा का शहर और उजड़ा पड़ा हो। उसने कहा ये तजलील को दूर करना है, और बाइबल कहती तभी आंखों वाले से लोगों को जलन होना शुरू हो गई। इसलिए आपका अगर विरोध होता है, मुखालफत होती है, तो फिक्र मत करना, क्योंकि आपकी आंखें खुल चुकी हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि नेहमिया की स्टोरी, उसका एग्जाम्पल आप इसे अपने ऊपर इमेजिन करो ना, क्योंकि मेरा बाइबल का पढ़ने का यही स्टाइल है। अगर मैं नेहमिया को पढ़ता हूं तो मैं नेहमिया को नहीं पढ़ता, मैं अपने आप को पढ़ता हूं कि अगर मैं यरूशलेम बनाने के लिए खुदा मुझसे बात करता, आपसे बात करता, फिर क्या होता? फिर क्या होता? यरूशलेम बनता? यरूशलेम बनता भाई परवेश? यरूशलेम नहीं बनता, कभी नहीं बनता सच में, क्योंकि सबको अपनी फिक्र है, किसी को खुदा के राज की फिक्र नहीं है। लेकिन मुबारक है वो लोग जिनके हाथ खुदा की सेवा के लिए खुलते गए, जिनकी भावनाएं, इमोशंस, जिनकी स्ट्रेंथ, मैंने कहा जिनकी सोचें खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होती गए, वो यहां भी अजर पाएंगे और आने वाले जहां में भी अजर पाएंगे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों बाइबल कहती है कि एक शख्स आया उनके बीच में, खुदा का काम करने वाला, और लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आपको पता है यीशु मसीह जब यहूदियों के बीच में प्रचार करते थे तो यहूदियों को प्रॉब्लम हुई कि नहीं? यीशु मसीह को मारने का कई बार प्लान किया कि नहीं? बोलो हाँ के ना। और बाइबल कहती है क्यों? क्योंकि यहूदियों को उनका नंगापन दिख रहा था,
बाइबल कहती है एक आंखों वाला उनके बीच में आया और उनको बता रहा है तुम सफेदी फिरी कब्रें हो। उनको बता रहा है तुम रकाबी को सिर्फ बाहर से चमकाते हो, अंदर से नहीं। उनकी स्पिरिचुअल हालत को मसीह ने रिवील किया और बाइबल कहती है उनको प्रॉब्लम होना। तो इसलिए मैं कहता हूं अंधों की बस्ती में जब भी आंखों वाला आएगा क्या होगा? अंधों को प्रॉब्लम होगी। अजीजों, एक तस्वीर को इमेजिन करना, आप सभी ऐसी तस्वीर को माइंड में लाइए कि जनाब एक आदमी आगे जा रहा है और दो से पीछे खींच रहे हैं। इमेजिन करो ऐसी तस्वीर को, तसव्वुर में लाओ। एक आदमी आगे जा रहा है और दो से पीछे खींच रहे हैं। तसव्वुर में लाइए उसे आप। अब मुझे इस सवाल का जवाब देना कि इस दुनिया में जब दो तरह के लोग हैं, एक आगे जाने वाला और उस दूसरा उसे पीछे खींचने वाले। अजीजों, याद रखो ये इंसानी फितरत है कि जब भी वो ग्रुप में अपनी तस्वीर, जब भी ग्रुप को देखेगा, अगर उस ग्रुप में वो हुआ तो वो सबसे पहले किसको देखता है? अपने आप को देखता है। ऐसा आगे नहीं बोलिए, जब भी ग्रुप की तस्वीर होगी वो अपने आप को देखेगा। अब जो ग्रुप मैंने आपको दिखाया है, आप इसमें अपने आप को ढूंढो। आप कहां पर हो? आगे जाने वाले हो कि खींचने वालों में हो? किन में हो? बोलिए। खींचने वालों में। बहन कह रही है खींचने वालों में। ये तस्वीर याद रखो दो तरह के लोगों का बयान करती है। अगर आप आगे जाने वाले हो तो ये माइंड में रखना कि खींचने वाले भी आएंगे, और अगर आप आगे जाने वाले नहीं हो तो फिर खींचने वालों में आप हो, क्योंकि ये दुनिया की रीत रही है कि वो टांग खींचते हैं। वो बोलिए टांग खींचते हैं। तभी तो नहमिया की टांग खींचने वाले आए, रोकने वाले आए, उसे मैंने कहा अड़ंगा मारने वाले। लेकिन अगर आप, मैंने कहा, खुदा का काम करने के लिए ना सिर्फ बुलाए गए बल्कि चुने और मुकर्रर किए गए हो, तो ये चीजें सोच कर चलना, फिर आपको घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें पहले से पता हो ना उनके लिए परेशानी नहीं होती। बोलो आमीन। अगर आपको पता हो ना कि इस गली से जाऊंगा तो कुत्ता बैठा है, तो जनाब आप उस गली से नहीं जाते। लेकिन अगर आपको पता है एक ही गली है और कुत्ता भी है, तो साथ में आपके पास सोटी डंडा जरूर होता है। आप तैयारी से जाते हो, आपको पता ये होगा, आप फेस करने के लिए चीज रखते हो। तभी बाइबल ये बता रही है जिस रास्ते को आपने चुना है ये सोच कर चुनना। बाइबल कहती खिलाफत होगी। बोलो होगी कि नहीं? बाइबल कहती है गुस्सा करने वाले आएंगे, रोकने वाले आएंगे, लड़ने वाले आएंगे, बैरियर्स अटकाने वाले। और पता, आप याद रखना, मजे की बात तो यह है कि दूसरों को कोई फिक्र नहीं है और रुकावटें अपने गिराते, अपने अपनों से होती है मुश्किलें। यीशु मसीह ने क्या बोला था? तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्हारे अपने। बोलिए। इसलिए ज्यादा फिक्र की बात ये रहती है। अजीजों, कलामे खुदा के अंदर मैंने कहा ये जो सिंपल सी तस्वीर है ना, जो हमने देखी, इमेजिन की, अपने अंदर बड़ा गहरा भेद रखती है, एक गहरा सबक सिखाती है। अगर आप आगे जाने वालों में से हो तो बस ये सोच कर चलना, टांग खींचने वाले भी आएंगे, रोकने वाले भी आएंगे। लेकिन अगर आप रुके नहीं तो यीशु मसीह के नाम में फिर प्रमोशन आपकी है। आमीन। मैंने कहा अगर आप रुके नहीं तो ब्लेसिंग्स आपकी हैं। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि एक आंखों वाला यरूशलेम के अंदर गया और कायलियत की, उसने, बाइबल कहती है, प्रचार कर दिया और लोगों ने इत्तेफाक कर दिया। 52 डेज के अंदर यरूशलेम की फसील को उसने बनाकर खड़ा कर दिया। और इसलिए मैं ये बताता हूं अजीजों कि अगर नहमिया की इस काविश और इस बड़े काम की वजह से भी लोग उसके हक में नहीं थे, तो आपको ये सोच कर चलना है कि नहमिया असल में आज की कलीसियाओं को ये सबक सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि तुम बड़ा कुछ करने के लिए आए हो तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएं या लोग तुम्हारी खुशामद करें, वो रोकेंगे तुम्हें। लेकिन अजीजों, इतिहास लिखने तो आसान काम उसे नहीं होता। ऐसा है हिस्ट्री। याद रखना, कभी भी आप जो करते हो ना, अगर वो आसान काम है तो वो हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो दूसरा भी कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर आप इतिहास लिखना चाहते हो तो फिर कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल करना पड़ेगा। अगर नहमिया ये ना करता, वो बाइबल में ना होता, क्योंकि उसके जन्म पत्री का कोई पता नहीं है। हमें नहीं पता कि वो जनाब किस कदर वो खुदा में था या उसका परिवार कौन कौन सा था, नहीं पता। लेकिन जो कारनामा उसने किया ना, उसी से उसको बाइबल ने डिस्कस किया है। हालेलुया। आइए एक वर्ष को पढ़ना, मत्ती की इंजील 5 बाब की
11 और 12 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। देखो मेरे साथ, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष को देखिए क्या लिखा है। लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो बाइबल क्या बता रही, तुम क्या होगे? ऊंची आवाज में बोलो, क्या होंगे? मुबारक होंगे। अगर ये आपको, मैं कहता हूं, डिक्लेरेशन अपने लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, तो आपको वो बाइबल कहती है स्टोरी भी अपनी लाइफ में अपनानी पड़ेगी। और वो स्टोरी क्या है? बोलिए, सताए जाएंगे, लान तान सहेंगे और नाहक बातों को सुनेंगे। ये 3 चीजें हैं। अगर मुबारक हाली को अपने अपने परिवार के लिए चाहते हो तो बाइबल ये कहती है ये चीजें भी करनी पड़ेंगी, ये फेस करनी पड़ेंगी। हमें लान तान को, हमें सताव को, बाइबल कहती है हमारी निस्बत नाहक बातों को जब लोग करते देखे ना, तो मैं कहता हूं शादमान क्यों होना, मुबारक क्यों होना? क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए, अब मैं उस लेवल पे आ चुका हूं। बोलिए आमीन। मैं उस लेवल पे आ चुका हूं। आगे लिखा है 12वीं आयत में, अब याद रखना लेवल पता है कौन सा है? रसूलों का, नबियों का, मसीह का, क्योंकि ये सब उनके साथ हुआ था। अगर मेरे साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है मैं उस लेवल पे नहीं हूं। अगर हो रहा है तो मैं उस दर्जे पे आ चुका हूं। 12वीं वर्ष खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर बोलो तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों याद रखो, अगर हम मुसीबत सहने में नबियों के बराबर हैं तो अजर पाने में भी नबियों के बराबर हैं। बोलो आमीन। मुसीबत सहने में नबियों के शरीक हैं तो अजर पाने में भी नबियों के शरीक हैं। बस कंडीशन ये है, क्या हमने सताव सहा, क्या दुख सहे, क्या लान तान सही, क्या नाहक बातों को सुना है? अजीजों याद रखो, डेविल आपकी फायर को, उस ग्रेस को जो आपकी लाइफ पर खुदा ने आपको दे दिया है, उस मसा को जो आप पा चुके हो, उसे तकलीफ है, उसे प्रॉब्लम है और वो उसी से आपको निकालना चाहता है। पर चीजें क्या यूज करेगा? नाहक चीजें, नाहक बातें। और अगर याद रखो आप मसीही जिंदगी में ढीठ नहीं हो ना, तो फिर वो आप दिल बर्दाश्ता हो जाओगे वो बातें सुन के, क्योंकि मसीही जिंदगी के अंदर कई बार हमें ढीठ बन के करना पड़ता है। लोग बोलते हैं तो बोलें, लोग करते हैं तो करें, लेकिन मैं क्या हूं? मैं ढीठ हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अजीजों याद रखिएगा, मैंने कहा 12वीं आयत ये कहती है जब ये सब कुछ होने लगे सिर्फ खुशी नहीं करना, शादमानी। आमीन। उसने कहा शादमानी करना, क्योंकि अब तुम नबियों के लेवल पे आ चुके हो। अब नबियों का लेवल याद रखो अजर का लेवल है। नबियों का लेवल अजर का लेवल है। अगर अभी तक विरोध नहीं हुआ, हमने जो चीजें पढ़ी है ना, जलने वाले लाइफ में नहीं आए हैं। अजीजों याद रखना, मैंने लाइफ में ये देखा है 1% लोग गर्मी से जलते हैं और 99% लोग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से जलेंगे। क्या पता मैंने किया, क्या बताया मैंने आपको? 1% लोग गर्मी से और 99% लोग आपकी फायर से, आपके ग्रेस से, आपकी एक्साइटमेंट से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जलेंगे। लेकिन आपको ये सोच कर चलना है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजों याद रखो, कहते हैं जो लोग इस तरह मुसीबत और दुखों में सताए जाने में, मुखालफत में नबियों के बराबर है ना, वो रिवॉर्ड में। और ये अजर याद रखो बड़े कमाल का है, यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो अजर मिलता है ना, ये बयाने में ऐसा नहीं है कि आपको खुदा यहाँ भूखा नंगा कहेगा मर जा और बस वहां सारा कुछ, और नहीं, यहाँ से नींव डल जाती है। खुशहाली की बुनियाद यहीं से डल जाती है, क्योंकि हमारी खुशहाली दिखाकर खुदा कईयों को कायल करना चाहता है कि ये देखो अपनी लाइफ में जीरो था, ये अपनी लाइफ में आज अगर हीरो बना
तो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट में आने के सबब से। आमेन। अगर वो हमें गरीबी मार के ले जाएगा तो याद रखना, हम तो कईयों के लिए मैं कहता हूँ एक बुरा नमूना ठहरेंगे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है धरती के लोगों में मैं तुम्हें प्रॉस्पर करके एग्जाम्पल बनाऊंगा। तुम्हारे पर्सनल प्रूफ इतने ज्यादा होंगे, लोग आकर खुद इकरार करेंगे ये तो पहले ऐसा नहीं था, इसके पास ये सब नहीं था, ये कैसे आया। उस वक्त आप गवाही देना शुरू करोगे और वो वक्त होगा जब आपको फख्र होगा कि अच्छा हुआ मैंने दुख उठाए और आज ये अजर मेरे पास है। बोलो आमीन, हालेलुया। आप मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में जिस प्रचार को सुन रहे हो, और मेरी ये दुआ है जो नेहमिया की लाइफ पर ग्रेस था वो आपकी लाइफ पर आए। हाथ उठाकर बोलो आमीन। नेहमिया की एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आए, वो फायर आपकी लाइफ में आए, आपकी आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम में, और आप खुदा के राज को बढ़ाने के लिए अपना हर सोर्स इस्तेमाल करो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, पुराने एहदनामा के नबी मैंने कहा उनको भी लोगों ने सताया था। आपको पता है यीशु मसीह ने यरूशलेम पर रोकर क्या बोला था? क्या बोला था? ऐ यरूशलेम, दुख है तुझ पर क्योंकि तूने नबियों को कत्ल किया है। और सोचो कत्ल करने वाले कौन थे? कौन थे कत्ल करने वाले? उनके अपने ही तो थे, उनके अपने ही थे। इसलिए अजीजों, उन नबियों ने आज भी कलीसियाओं को एक सबक सिखाया है। वो सबक क्या है? ऊंची आवाज में बोलना, डोंट रिट्रेट। फिर से बोलो, डोंट रिट्रेट, के पीछे मत हटना, क्योंकि जो आप देख चुके हो ना, जो मंजर आप देख चुके हो वो शैतान भी देख चुका है। इसलिए वो खुद तो नर्क जाने वाला है, इसलिए वो रोकेगा कि ये स्वर्ग ना जाए। लेकिन अगर आप, मैंने कहा, उन ब्लेसिंग्स की कदर और वैल्यू जानते हो तो यहाँ की चीजों को बोने के लिए फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो अजीजों, मैंने कहा खुदावन यीशु मसीह को बोलिए किन लोगों ने सूली चढ़ाया था? अपनों ने। बाइबल कहती है एक यहूदी को यहूदियों ने सूली चढ़ा दिया, एक चर्च जाने वालों को, एक चर्च जाने वाले को चर्च जाने वालों ने सूली चढ़ा दिया, एक मजहबी आदमी को एक मजहबी लोगों ने मिलकर सूली चढ़ा दिया। अजीजों, जो लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया हमें छोड़ देंगे? बोलिए छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डेविल खुद नहीं करता है। याद रखना, वो लोग यूज करता है, और ये कॉपी उसने खुदा की है, क्योंकि खुदा ने ये सिस्टम ठहराया है कि जो वो धरती पे करेगा ना वो खुद नहीं करेगा, वो लोगों के बीच में से किसी को खड़ा करके ब्लेस करके उसे यूज करेगा। और ये कॉपी शैतान ने की है और इसीलिए लोगों को यूज करता है। अजीजों, याद रखो, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि लिखा है कि जब नाहक बातें तुम्हारे लिए की जाए तो तुम जनाब, लिखा है, मायूस मत हो जाना, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। आपको पता है, अगर आप तारीख पढ़ लो ना तो तारीख ये बताती कि इस बात की तस्दीक करती कि जो जीसस ने कही थी सबसे ज्यादा विरोध किसने सहा है? किसने? बाइबल मुकद्दस ने। और सबसे ज्यादा मुखालफत या परसिक्यूशन अगर फेस करना पड़ा तो दुनिया के अंदर एक ही वो धर्म या वो मजहब है, वो क्रिश्चियनिटी है। लेकिन इसके बावजूद क्या बाइबल ने बढ़ना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है इसने। क्या क्रिश्चियनिटी ने बढ़ना छोड़ दिया है? आज गैर अकवाम तस्लीम करने को तैयार हैं कि टॉप पर अगर कोई है मजहब तो वो बोलिए क्रिश्चियनिटी है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, और उन्हें मुबारक कहो जिन्होंने मेहनत की है, वो नेहमिया के जैसे हैं। और मेरी ये दुआ है आप में से भी कोई नेहमिया के जैसा हो। हालेलुया। अजीजों, मैंने कहा तारीख गवाह है कि यीशु मसीह के शागिर्दों को, यीशु मसीह को, नबियों को लोगों ने सताया। आपको भी ये फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर माइंड बनाकर आए हो कि कुछ भी हो मैं वापस जाने वालों में नहीं हूं, अपने पीछे के पुल जनाब सारे कहते हैं जब रोम पर अटैक हुआ ना
تو بادشاہ نے ہسٹری بتاتی کہ اس کو پتا تھا ہماری فوج یہ نہ ہو کہ ان کی طاقت کو دیکھ کر واپس دوڑ جائے، تو جس نے فارسی بادشاہ نے اٹیک کیا تھا نا، کہتے ہیں اس نے سارے پہلے فوج کو اتار کے سارے پل جلا دیے تھے کہ کوئی واپس نہیں جائے گا. کشتیاں جلا دی تھی، اور کہتے ہیں کہ جناب اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، لڑنا ہے اور جیتنا ہے. لڑنا اور نہیں، مرنا نہیں ہے، لڑنا اور جیتنا ہے. اور وہ جیت گئے تھے کیونکہ آپشن نہیں تھا. ہماری لائف کے اندر اے آپشن رہتا ہے دعا کا، بی آپشن رہتا ہے دم درود کا. یہ دعا نہ لو یا تو دم تے ہے ہی نہیں، تو ہوتا دونوں میں نہیں ہے پھر. لیکن لائف میں جب آپشن ختم کر دیتے گئے کہ وہ چنگا کرے نہ کرے وہ میرا خدا ہے، وہ بلیس کرے نہ کرے وہ میرا خدا ہے، عزیزو آپشن نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے جا اب تو چنگا ہی ہوگا، جا اب تو سرفراز ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے خود اقرار کیا ہے کہ جناب جانے والوں میں نہیں ہے، ہم ادھر ہی ہیں بس. ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا. عزیزو میں نے کہا لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، کہتے ہیں لوگ ہمیں تب بھی تنگ کریں گے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. لوگ ہمیں تب بھی تنگ کریں گے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور لوگ مزے کی بات ہمیں تب بھی تنگ کریں گے جب ہمارے پاس کچھ ہوگا. اس لیے کہتے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو آپ کے دکھ میں دکھی، ایک وہ جو آپ کے سکھ میں دکھی، اور ایک وہ ہے جو خواہ مخواہ کا دکھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بولو ہاں. کتنی قسم کے لوگ ہیں بولیے؟ اور 3 قسم کے، ایک وہ جو آپ کے دکھ میں دکھی، تو چلو سمجھ آتی ہے بات. لیکن وہ جو آپ کے سکھ میں دکھی ہے تو یہ سوچو ایک خواہ مخواہ کا دکھی. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ تنگ ہو تو میں نے کہا آپ پھر بھی یہ دیکھو گے کہ جناب ہمیں لوگ تب بھی تنگ کریں گے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تو لوگ ہمیں تب بھی تنگ کریں گے. تو لوگوں کی پرواہ اور نہیں کرنے کا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آمین. بولو ٹینشن لینے کا اور نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے، ٹانگ کھینچنا ان کا کام ہے. لیکن آپ کو نہمیہ کو یاد رکھنا ہے. ہاللیلویا. نہمیہ کو بولو یاد رکھنا ہے. عزیزو میں بتا رہا ہوں، ہم یہ سیکھتے گئے کہ جب ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگے تو رونے کی بجائے شادمانی کرنا، خوشی کرنا کہ اچھا ہوا کہ میں دکھ اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میں مسیح کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اس لیول پہ آ چکا ہوں. بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی کہ بولو آمین. اب لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ تب تک ہمیں کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے. یہ لوگوں کی نیچر ہے. جب میں نے کہا ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے، اور جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں کامیاب رہنے بھی نہیں دیں گے. یہ ان کی نیچر ہے. اور اس لیے کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا روگ ہے کیا کہیں گے لوگ. تو لوگوں کی پرواہ مت چھوڑو، ان کو فکر میں مت لاؤ، کیونکہ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں وہ آپ سے جلتے ہیں، وہ آپ کو روکتے ہیں. لیکن نہمیہ کی لائف میں اگر یہ سب ہوا ہے تو ایک ہی ایگزامپل وہ دے رہا ہے، بس اس نے کہا پیچھے مت ہٹنا. بات کیا بولا اس نے؟ یہ اس کا ایگزامپل ہے کہ پیچھے مت ہٹنا. کہتے ہیں پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں 100 گھر تھے. کتنے گھر تھے؟ 100 گھر تھے پرانے وقتوں میں. اور اس گاؤں میں بجلی نہیں تھی اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کو بغیر بجلی کے رہنے کی عادت ہو چکی تھی. اندھیرا ہونے سے پہلے سب کچھ وہ کر لیا کرتے تھے. اور چونکہ وہ قدیم گاؤں تھا تو وہ اپنے علاقے سے کبھی باہر گئے بھی نہیں تھے. اور اچانک ایک ان گاؤں میں سے ایک آدمی کو کسی خاص مجبوری سے 500 کلومیٹر دور جانا پڑا. اور اس کہانی میں یہ بتایا جاتا ہے، یاد رکھنا کہانی ہمیشہ زمینی ہی ہوتی ہے پر سبق اس کا آسمانی ہوتا ہے. ہمیشہ جیسس نے بھی کوئی بھی شاعری، کوئی بھی نظم، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی جس کا سبق ہوتا ہے ہمیں سبق کو سیکھنا چاہیے. آمین. اور یاد رکھنا کہتے ہیں وہ 500 کلومیٹر دور گاؤں میں گیا اور اس نے وہاں عجب نظارہ دیکھا کہ لوگوں کا رہن سہن ان سے بالکل مختلف ہے.
کیونکہ اس نے دیکھا کہ لوگ جناب رات ہونے سے پہلے کسی چیز کو آگ لگاتے ہیں اور وہ پورے گھر کو روشن کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ تھی لالٹین۔ اس آدمی نے پلان کیا کہ میں بھی نہ اسے اپنے گاؤں لے کے جاؤں گا۔ اب واپسی پر پیسے دے کر جناب خرید کر وہ اسے لے گیا واپس۔ اب پورا گاؤں کہتے گئے اس لالٹین کو دیکھنے کے لیے آیا، یہ کیا لے کر آیا؟ اب تک تو بات سمجھ آتی ہے، اب تک تو سمجھ آتی ہے کہ سب اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا چیز لے کر آیا ہے۔ اب شام کو یاد رکھنا جیسے ہی اندھیرا ہوا اس آدمی نے کہتے ہیں لالٹین کو جلایا۔ اب 100 گھروں میں سے ایک گھر روشن دکھ رہا تھا اور 99 گھر سارے تاریکی میں تھے۔ اب برابری کے 2 راستے تھے ان کے پاس، بہن سونیا، برابری کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1 راستہ یہ ہے 500 کلومیٹر دور جائیں اور وہ بھی اپنے لیے لالٹین خرید کر لائیں اور برابری کریں، یا پھر 5 گلیاں دور جائیں اور اس کی لالٹین کو بجھا دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آسان ان کے لیے کیا ہے؟ اس کی لالٹین بجھانا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنا جلانا مشکل ہے اور لوگوں کو دوسرے کا بجھانا آسان لگتا ہے۔ اب یروشلم ٹوٹا پڑا ہے اور بنانا مشکل ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آنکھوں والا ان کے بیچ میں آیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بھی بجھا رہے ہیں۔ بجھا رہے ہیں کہ نہیں بجھا رہے؟ اب بجھا رہے ہیں کیسے؟ مخالفت کر کے، بندشیں ڈال کے، رکاوٹیں کھڑی کر کے۔ لیکن عزیزو ہم یہ سیکھتے ہیں یہ دنیا یاد رکھو شروع سے ہی ایسا کرتی آئی ہے۔ جو آپ کی گلی میں، جو آپ کے گھر میں، جو آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ اسپرچل ہونے کی کوشش کرے گا، باتیں ہوں گی اور بڑا حاجی ہو گیا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگوں کو مشکل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ لوگ اپنے جیسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگ اپنے جیسے، کیونکہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ دینداروں کی نہیں ہے، وہ دنیا دار لوگوں کی ہے، اور دنیا دار لوگ دنیا داروں کو ہی پسند کرتے ہیں، دینداروں سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں میں نے کہا بس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ پیچھے مت ہٹنا۔ بولو پیچھے، اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولو پیچھے مت ہٹنا۔ آئیے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 13 آیت کو پڑھیے ذرا۔ یوحنا کی انجیل پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت ہے۔ پہلا یوحنا کا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو بولو تعجب۔ انسان زندگی میں یاد رکھو بنیادی طور پر راست باز لوگوں سے نفرت اور عداوت کرتا ہے، اور اس کی شروعات اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ میری خود کی لائف کے اندر ایسا ہے، جہاں تک ہو سکا میرے باپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، رکاوٹوں پر رکاوٹیں، لیکن اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے اس باپ کی مانے کہ اپنے روحانی باپ کی مانے، کیونکہ 2 قوانین جب ٹکراتے ہیں تو واجب ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے روحانی باپ کی مانے۔ بولیے آمین۔ اس لیے میں نے کہا یہ بنیادی طور پر اس دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ راست باز لوگوں کو ناپسند قرار دیتے رکھے گئے اور عداوت کرتے رکھے گئے، نفرت کرتے رکھے گئے۔ کہتے ہیں کہ بے ایمان شخص اپنے یوں ننگا ہو جانے کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اپنی بری روش اور ناپسندیدہ چال چلن کو بدلنے کی بجائے اس چیز یا اس شخص کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے اس کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو نہمیہ کے ساتھ وہی یہ کر رہے تھے کیونکہ اس نے ان کی حالت کو ظاہر کر دیا تھا۔ جیسس کے ساتھ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ جیسس نے ان کی حالت کو ظاہر کر دیا تھا۔ یوحنا بائبل کہتی ہے انہیں سام کے بچے کہہ رہا تھا، وہ سچ میں شیطان سے تھے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ سرپن سیڑ والے لیتے ہیں، اس کا مطلب اپنے کاموں سے شیطان کے بچے تھے، تو تبھی اس کو بھی لوگ ناپسند قرار کرتے تھے۔ عزیزو یہ رواج رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اختیار کرنا یہ دنیا کا شروع سے ہی رواج رہا ہے، یہ ریت رہی ہے، اور بائبل مقدس نیک لوگوں کو یہ خبردار کرتی ہے کہ تعجب بولو نہ کرنا جب یہ تم سے ہونے لگے، کیونکہ تمہاری بنیاد اسی چیز پر ہے۔ آمین۔ ہم بنیاد ہیں کہ ردہ ہیں؟ بولیے نہیں، بنیاد تو ییشو مسیح ہے۔
हम ऊपर के रद्दे हैं। अब जैसी बुनियाद होगी तो रद्दे भी तो वैसे ही होंगे ना। जड़ यीशु मसीह है तो जड़ से जो आएगा टहनियों को तो उनको तो वही मिलना है। इसलिए मैंने कहा हम ऊपर के रद्दे गए, उसकी इमारत के ऊपर के रद्दे गए। तो बुनियाद के साथ विरोध हुआ, झगड़ा हुआ, बाइबल कहती है उसे ना हक बातें सहन करनी पड़ी। आगे चर्च को भी ये सब करनी पड़ रही है। लेकिन मजे की बात तो ये है ना कि रोकने वाले जार रखे गए, चर्च आज भी मौजूद है। आमीन। अगर आप रोमी हुकूमत की हिस्ट्री पढ़ो तो कहते हैं सीजर बादशाह ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि उसके जमाने में मसीहत खत्म हो जाए। और उसका बयान जो रकम बंद हुआ था, उसने कहा मैं एक मसीही को जलाकर जब उसको जला देता हूं तो उसकी राख से हजारों मसीही पैदा हो जाते हैं। मैं तो हैरान हूं। उसने कहा मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मसीहत को खत्म कर दो। हर जमाने के अंदर क्रिश्चियनिटी को सामना करना पड़ा दुख का, लेकिन बाइबल कहती है वो बढ़ती गई, वो बढ़ती ही गई। आमीन। अमाल 8 बाब को पढ़ लो। बाइबल कहती सारी कलीसिया एक ही जगह थी, यहूदियों ने अटैक कर दिया और कलीसिया तितर बितर हुई, जिधर जिधर गई। मजे की बात तो ये है ना, वो जिस जिस गांव गांव गए प्रचार करते गए। पहले एक ही जगह क्रिश्चियनिटी थी, बाद में ओ पूरे गांव देहात, क्योंकि खुदा ने डेविल की इस योजना, इस मर्जी से भलाई पैदा कर दी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बढ़ने लग पड़ी। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजों, नेक लोगों से मैंने कहा बदसलूकी करना इस दुनिया का रवाज रहा है, क्योंकि नफरतें, साजिशें और मकारियां ये सब कहते हैं कम ज़र्फ और कम हौसला लोगों के ये मशगले गए, वो ऐसा करते गए। लेकिन हकीकत तो ये है कि ज़र्फ और दनाई वालों के पास इतना वक्त ही कहा कि वो अपने विरोध को भी सुने। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी कहते हैं कि मैंने कभी उस वीडियो को नहीं देखा जो मेरे खिलाफ बनता है। मैंने कभी उस पर तबसरा नहीं किया कि मेरे लिए सोशल मीडिया पे लोग बैठ कर क्या बोलते गए, क्योंकि जिसको काम करने से लगाव है ना, बस वो काम करता है। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है इस जिंदगी के अंदर, 5 साल आप वो करो जो आप कर रखे हो, और 5 साल उनको करने दो जो वो कर रखे गए। 5 साल के बाद रिजल्ट आपके हाथ में होगा, क्योंकि वही लोग आकर जनाब आपसे ले हैंड करने को तैयार होंगे, ले हैंड कराने को तैयार होंगे, आपके ग्रेस, आपकी अनॉइंटिंग को कबूल करने को, आपको रिस्पेक्ट देने को तैयार होंगे। आज जो हाथ आपकी लाइफ पर मैंने कहा पथराव के लिए उठते गए, अजीजों कल वो उस लूट मारने के लिए भी खुदा उठा सकता है। बस आप 5 साल वही करो जो आप कर रखे हो, और उनको वो करने दो जो वो कर रखे हैं। बस रिजल्ट आने पर फर्क वाज़िया हो जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया ना, बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। कहते हैं कि अपने चाहने वालों से मोहब्बत करो, बस जो आपको ना इनकरेज करते हैं। जब टीम फुटबॉल की ग्राउंड में उतरती है तो कहते हैं तकरीबन 22 खिलाड़ी होते हैं ना, है ना। तो मुझे बताओ वो 11 किस पर अटैक कर रहे हैं, किसके ऊपर? जिसके पाँव में बॉल है, ऐसा है कि नहीं, है ना। तो क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास कुछ है। तो ये सोचो, अगर वो ये सोचे कि मैं तो बढ़ रहा हूं, कोई ठिड्डा मार रहा है, कोई कोनी मार रहा है, तो ऐसा क्यों है? ओ भाई, इसलिए जो आपके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं है। और उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या उनको देखे रोए और चलाए के क्यों रोकते हैं, या उनको देखे जो इनकरेज कर रहे हैं और मुझे पास दे और चल आगे दौड़, मैं तेरे साथ हूं। सेम ऐसा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी है। बोलो आमीन। इनकरेज करने वाले लोगों को कभी पीछे मत रखना, हमेशा उन्हें याद रखना, क्योंकि वो खुदा ने आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स के तौर पर रखे गए। अजीजों, याद रखो जिंदगी में नापसंदी याद रखो जरूरी है। नापसंदी बोलिए जिंदगी में जरूरी है। कहते हैं अगर कोई आपको पसंद करता है ना, तो फिर आपकी लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको पसंद करता है भाई आसफ, तो आपकी लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं वो इसलिए कि हो सकता है, इस बात का सबूत ये हो कि आपने दुनिया में बहुत सारे समझौते किए हुए हैं। मैंने कई बार पादरियों को कहते सुने, खुदा का शुक्र है मेरी कोई मुखालफत नहीं करता, मेरा कोई विरोधी नहीं है। तो अजीजों, असल में यही है कि उसकी फायर, उसका ग्रेस, उसके मसा से डेविल को कुछ परेशानी नहीं है। क्यों बहन? परेशानी तो नहीं है ना। परेशानी जिससे होगी उसके ऊपर सोल्जर्स नहीं खड़े किए जाएंगे।
اس لیے عزیزوں کہتے ہیں اگر خدا کا گاڈس یا گاڈ کا اگر یوٹیوب چینل ہو تو کیا اس کے اوپر ڈس لائک کا بٹن نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اگر یوٹیوب پہ گاڈ کا چینل ہے کہ نہیں؟ بولو تو اگر کیا اس کے اوپر ڈس لائک کا آپشن نہیں ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر وہاں پر بھی آپشن ہے کہ تم خدا کو بھی چھوڑ سکتے ہو تو میری اور آپ کی عزیزوں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کو پسند کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب آپ سے اچھا برتاؤ کریں، یہ ضروری نہیں کہ سب آپ سے پریم میں رہیں۔ اس لیے عزیزوں کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو نا کہ سب آپ کو اچھا بولیں، جی بہن وینس کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں سب آپ کو اچھا بولے تو کہتے تسی مر جاؤ۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ مرے کو کہتے بڑا چنگا بندہ سی، کہتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ سب آپ کو اچھا ہی بولیں تو پھر آپ مر جاؤ، کیونکہ مرے بندے کو بندہ کہتا بہت بڑا چنگا بندہ سی۔ تو یہ دنیا یاد رکھو جیتے انسان کو دکھ دیتی ہے، یہ اس کا ازل سے رواج رہا ہے۔ ایک ورس کو پڑھنا ذرا، یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 18ویں اس کی 19ویں اور اس کی 20ویں ورس کو دیکھو میرے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا جناب 15واں چیپٹر اور اس کی 18ویں 19ویں اور اس کی 20ویں دو ورسز کو۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی۔ 19 آیت، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے۔ اب میں نے کیا بولا تھا؟ دنیا اپنی جیسوں کو پیار کرتی ہے، راست لوگوں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر نہ تکلیف ہوتی تو یاد رکھنا جیسس کرائسٹ صلیب پہ نہ ہوتے اور ڈاکو صلیب سے نیچے نہ ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح میں نے کہا نیچے ہوتے اور وہ ڈاکو صلیب پر ہی ہوتا، لیکن دنیا اپنے جیسے کو عزیز رکھتی ہے۔ وہ ڈاکو تھا تو دنیا بھی ڈاکو ہی ہے، انہوں نے اس کو عزیز جانا اور راست باز کو سولی چڑھا دیا۔ اس لیے آگے پڑھتے ہیں 19 آیت میں، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ 20 آیت، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بھی بات پر بولو عمل کریں گے۔ عزیزو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا آپ سے عداوت رکھنے، نفرت کرنے اور جیلسی کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، آپ چرچ جانے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ دعا کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اگر وہ برا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم اچھا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اکثریتیں ہٹ جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیچھے ہٹتے، لیکن عزیزو یاد رکھنا ان چیزوں کو فیس کر کے ہی ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے، آپ کو ہسٹری پڑھنی ہے کہ آپ کو ہسٹری بنانی ہے؟ بولیے، ہسٹری پڑھنی ہے کہ ہسٹری بنانی ہے؟ ہسٹری بنانی ہے تو یہ کہا جاتا ہے ہسٹری بنانے والے ہمیشہ بے وقوف رکھے گئے، سماج نے انہیں بے وقوف کہا ہے، لوگوں نے انہیں مورخ اور نادان کہا ہے۔ جس بندے نے یہ کہا جناب میں ایسا موبائل بناؤں گا کہ ادھر سے امریکہ تک بھی وہ دیکھ پائیں گے، لوگوں نے کہا یقین کیا کیسا ہو جائے گا؟ نہیں۔ جس بندے نے کہا میں کرسی اڑا دوں گا، 100 بندہ اڑا دوں گا، ایک لویا اڑا دوں گا بڑا، لوگوں نے یقین کیا۔ کئی تجربوں کے بعد جب جہاز بن گیا، سچویشن بدلتی ہے تو لوگوں کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ ایمین۔ اس لیے تاریخ بنانے والے بے وقوف ہیں، تاریخ پڑھنے والے عقل مند ہیں۔ اگر آپ عقل مند ہو تو پھر تاریخ ہی پڑھو گے، لیکن اگر آپ کو ہسٹری بنانی ہے تو پھر آپ کو بے وقوف بننا پڑے گا، کیونکہ لوگ آپ کی عداوت کریں گے، بے وقوف بولیں گے، آپ کو مورخ اور نادان بولیں گے۔ لیکن میں نے کہا اس وقت ہم ڈھیٹ رہے تو سٹوری بدلنے میں پھر دیر نہیں گئے۔ ایمین۔ اس لیے میں نے کہا اگر ڈھیٹ نہ ہوئے تو وہ باتیں چبھیں گی۔ میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک ہی بات کو مہینہ مہینہ سوچتے رہتے ہیں، اوے لوڈ نہیں لینا، ہم نے تو لوڈر نہیں بننا ہے۔ لوڈر بن گئے تو جناب ہم آگے چل ہی نہیں پائیں گے۔ یاد رکھنا کہتے ہیں جب یہاں سے ایک وہ کشتی سی جو آسمان پہ جاتی ہے، سیارہ، اس کو اڑایا جاتا ہے نا، جب اسے اڑایا جاتا ہے تو اس میں بہت سارا سامان ہوتا ہے۔ پہلی فضا میں وہ ایک حصہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلی فضا میں اور حصہ، اور اوپر جاتے جاتے وہ سب چیزیں چھوڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے ہلکا ہونا ہے۔ وہ ہلکا ہو رہا ہے، لائٹ ہو رہا ہے،
सॉफ्ट हो रहा है और आगे निकल रहा है, हम लोडर हो रहे हैं। उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया। मुझे याद है एक जगह पर मैं मीटिंग के लिए जाता था और वहां पर ना मुझे किसी ने धमकी लगाई, अटक की बात है, ये क्यों आया ना तो डंडे मारांगे नू। और सच्ची बात है, मैंने उसे लाइट लिया, मैंने कहा चलो कोई गल नहीं। और मेरे घर वाले जाके लड़े उनसे। मैं मीटिंग से वापस आया तो कहते असी तेरे पीछे लड़के आए। मैं क्या अच्छा, मैं कितने लड़के आए, कहते उन्हें तेरे खिलाफ। ओ मैं क्या, ओनू करन दो जो करना है। मीटिंग चलती रही वहां। अजीजों, मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमने किसी की बात को ले लिया अपने ऊपर, क्या होगा, टेंशन हमें होगा कि नहीं, और बीपी हाई होगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी ने कह दिया तो कहता रहेगा, वो कहता रहेगा। अजीजों, हम ये पढ़ते गए, अजीजों ये इस दुनिया का रवाज रहा है, इसलिए आपको तब भी अपने ऊपर यकीन करना है। अजीजों, मैंने कहा जब लोग आप पर यकीन ना करते हो, आपको अपने ऊपर तब भी भरोसा रखना है जब लोग आप पर भरोसा ना करते हो। और उस टाइम में खुदावंद आपकी स्टोरी, आपके हालात को बदल सकता है, वो बदल सकता है। इसलिए कहते हैं मुश्किलें तो जिंदा लोगों का नसीब होती है। मुश्किलें तो बोलिए जिंदा लोगों का नसीब होती है, मुर्दा लोगों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते गए। क्या बनना है, जिंदा, तो मुश्किलें तो आएंगी। ऐसा नहीं होता जब जनाजा जा रहा होता है तो रास्ते नहीं छोड़ देते क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन अगर वही बंदा जिंदा है तो रुकावटें होंगी कि नहीं। इसलिए अजीजों, जिस राह को आपने चुना है और जो आप कर रहे हो, उसकी वजह से दुनिया को तकलीफ है, आपके घर वालों को, आपके लोगों को तकलीफ है, लेकिन अपनी फायर को कम होने नहीं देना। आमीन। इस ग्रेस में जिसमें खुदा आपको लेकर आया है, इसे बढ़ाना ही है अपने ऊपर। और उस मसा को जो आप दुआ रोजा करके हासिल कर चुके हो, उसे यीशु मसीह के नाम में बढ़ाना अपनी लाइफ में। अजीजों, कहते हैं कि मसीह की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि लोग क्या सोचेंगे। यहां से शुरू होती है। मैं चर्च जाना शुरू कर दिया, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। मैं बपतिस्मा लेने लगा हूं, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, मेरे बाप दादा क्या सोचेंगे। क्योंकि मैं तो ऐसी कलीसिया, ऐसे परिवार से हूं जहां गोता नहीं होता। मैंने कई लोगों को रुकते देखा है। जब मैं बपतिस्मा जिस दिन मैंने लिया था, मेरे साथ एक यूपी चर्च का लड़का था, उसने भी मसीह को कबूल किया था। लेकिन उसने ये सोचा, आज भी मुझे याद है बात, और उसे मैं देखता हूं, मैं रुक गया बंदा। और उसने ये सोचा असी तो यूपी है, मेरे घर वाले की कहणगे, और वो आज तक रुका हुआ है। तो मसीह की जिंदगी में असल प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, लोग क्या सोचेंगे। तो जो लोगों ने सोचना है वो तो आप सोच रहे हो, क्यों है, जो लोगों ने सोचना है वो तो हम खुद सोच रहे हैं। लोगों को तो हमने फ्री कर दिया है कि चलो तुम नहीं, टेंशन तो हम ले रहे हैं। तो इसलिए अजीजों, ये मसीही जिंदगी नहीं है। हकीकत ये है, जब स्टोरी चेंज होती है ना, तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। बस आप आज मुखालफत सहन कर रहे हो, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब लोगों के थॉट्स बदल जाएंगे। लोग आपके ग्रेस, आपके मसा और आपकी ग्लोरी को, मैंने कहा, सलूट करने को तैयार होंगे। लेकिन आपको वेट करना है उस टाइम तक, क्योंकि सब्र से कुछ नहीं होता है और सब्र के बगैर कुछ नहीं होता है। एक लड़की ने दुआ की, खुदावन मुझे सब्र दे जल्दी जल्दी, सब्र दे मुझे जल्दी जल्दी। सब्र के लिए भी सब्र नहीं है, लेकिन ऐसे मत बनिए कि सब्र के लिए भी आप बेसब्रे हो, क्योंकि बाइबल कहती है सब्र से सब चीजों में परफेक्शन आती है। आप पढ़ लो अब्रानियों में कि सब्र से सब चीजें कामिल होती हैं। इसलिए दुनिया का काम क्या है, बोलिए, टांग खींचना। हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इनकरेज करने वाला कोई नहीं है, आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। लोग तो आपके दुखी होने पर, मैं कहता हूं, वो खुश होंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि जब तुम दुख उठाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए खुश होगी। लेकिन मसीह ने कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे गम को खुशी में बदल दूंगा। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अगर आप दुख उठा रहे हो तो यीशु मसीह की ये प्रोफेसी आप और आपके परिवारों में पूरी हो। मैंने कहा अगर आप परसिक्यूशन को सहन कर रहे हो तो यीशु मसीह ने जो कहा वो आपकी लाइफ में पूरा हो। आपके नाचने के दिन शुरू हो, गवाहियों के दिन शुरू हो। आमीन।
अजीजों, इसलिए कहा जाता है कि आपको आपकी लाइफ में ये सब करना है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। एक चीज मुझे ये बताइए, ये लाइट सिर्फ पॉजिटिव वायर से जल रही है? क्या एक वायर है इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव? इसको जलने के लिए दो तारे चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस और प्लस। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे ना तो कभी चमकेंगे नहीं, याद रखिए, कभी चमकेंगे नहीं। और मैंने ही देखा है, अगर आपके पास पब्लिसिटी के लिए कहते हैं पैसे कोई नहीं तो दो चार दुश्मन पाल लो, क्योंकि जहां बैठेंगे आपका जिक्र करेंगे और आपकी फ्री की पब्लिसिटी है ना, फ्री की पब्लिसिटी है। जहां बैठेंगे ओ एंजना, जिनको वो कह रहे हैं वो यकीन करने के लिए आएंगे कि वेखिए तो एंजनी जो आएंगे ना जान नहीं। आमीन, हालेलुया। सोशल मीडिया को यूज करना नहीं आता, दो चार दुश्मन पाल लो, है कि नहीं? बोलो यस के नो। इसलिए आपकी फ्री की पब्लिसिटी होगी और बगैर पैसों की होगी। इसलिए मैंने कहा, अगर एक लाइट को जलना है तो उसे पॉजिटिव और उसे नेगेटिव चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और ये नूर कैसे चमकेगा? हम कहते हैं लोग हमें अच्छा बोले, और कहते नहीं चमकोगे, परसिक्यूशन आएगा, विरोध आएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें रोका जाएगा, तब तुम चमकना शुरू होवोगे। इसलिए मैंने कहा क्रिश्चियनिटी आज क्यों टॉप पे है? क्योंकि ये सब चीजें उसने देखी है। बाइबल आज भी है, क्यों? ये सब चीजें उसने फेस की है। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। एक आखिरी एग्जांपल मैं सुना के ना इस मैसेज को खत्म करता हूं। आपने देखा है हाथी पर हमेशा कुत्ते भौंकने वाले आते हैं। मैंने अगर आप देखो ना उस पे जियोग्राफी पे कई ऐसे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर भी देख लेना, ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे। हाथी जा रहा है और भौंकने वाले कुत्ते आ गए। अजीजों याद रखो, कहते हैं हाथी को कभी भी भौंकने वाले कुत्तों से परवाह नहीं होती, उसे कभी उनकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो हाथी है। उसे बताने की जरूरत नहीं, ओ मैं हाथी हूं मानो मुझे, उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है। वो बोलो है। और इसी तरह कहते हैं अगर किसी गांव में हाथी कहते हैं चला जाए तो हिंदुओं के अंदर यह है कि पूरा गांव उस हाथी के आगे हाथ जोड़े आ जाता है, महाराज आ जाइए, महाराज क्या बोलते हैं, तो उसको वेलकम किया जाता है पूरा गांव। और मैं ये बता रहा हूं अजीजों, अगर किसी गांव में हाथी आए तो गांव के सारे बुजुर्ग, मैंने कहा, हाथ जोड़े खड़े होंगे। और आप ये सोचोगे कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उनका भगवान है। अगर हाथी ये सोचे कि मेरे पीछे तो भौंकने वाले हैं, लेकिन वो किस चीज को देखता है? जो उसे मांगते हैं, जो उसे पूछते हैं। अजीजों याद रखो कि मेरे ख्याल में ऐसा कोई दूसरा जानवर नहीं है जिसकी इस तरह से पूजा हो या जिसके आगे इस तरह से हाथ जोड़े लोग खड़े हो। लेकिन स्टडी बताती है, ये कहते हैं जितने हाथी के आगे हाथ जोड़े जाते हैं वो किसी और के आगे जोड़े नहीं जाते। क्या बोला मैंने? जितने हाथ हाथी के आगे जोड़े जाते हैं वो किसी और के आगे जोड़े नहीं जाते। और जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़े होते हैं वो किसी और के पीछे पड़े नहीं होते। बोलो ऐसा है कि नहीं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि कुत्ते क्यों ऐसा करते हैं। कुत्तों को हमारी समझ नहीं आती, हमें कुत्तों की समझ नहीं आती। लेकिन अगर कुत्तों की बोली आए समझ, तो एक सवाल करें कि जनाब आपको क्या तकलीफ है हाथी से, तो पता है जवाब क्या आएगा? वो भी मैं आपको बताता हूं। जवाब ये आएगा, हमें हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनसे है जो उसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। हमें प्रॉब्लम किससे है? बोलो उनके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि वो सहन नहीं होते, उसकी ग्लोरी है वो बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए ये इस कायनात का असूल रहा है कि जितनी जिसकी तारीफ होगी उतनी उसकी मुखालफत भी होगी। तारीफ करने वाले, मैंने कहा, आपके सामने खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। लेकिन ये सोचो, हाथियों कुत्तों की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हाथी के आगे आकर भौंके। कदी तड़े मुंह ते किसी ने मुखालफत की थी? कितने कर दे पीछे। कभी मैंने कहा उन मुखालफत करने वालों की जरूरत नहीं होती, सामने आकर करें।
وہ اسی کتے کی اسپرٹ کے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھو، خدا نا جانوروں کی فلسفی سے بھی ایک انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسے پرواہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے بھونک رہے ہیں، بس اس کی چال مست بنی رہتی ہے. کہتے ہیں وہ چلتا ہے اور اس طرح سے چلتا ہے کیونکہ اسے آگے دکھ رہا ہے، وہ پیچھے والوں کو نہیں دیکھتا. تو جو آپ کو کھینچتے ہیں، جو آپ پر بھونکتے ہیں، آپ ان کو چھوڑیے نا. جو آپ کو انکرج کر رکھے ہیں آپ ان کو دیکھیے. ایمین. سب بولو آمین. عزیزو، کہتے ہیں لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں. بہن سونیا، لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اور کیچڑ گھمنڈ کر رہا ہے. کیچڑ کیا گھمنڈ کر رہا ہے. لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، لیکن کیچڑ کو گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے گئے، ہے نا؟ لوگ مجھ سے اور ڈرتے گئے اور دور رہیے ان سے. کہتے ہیں جو کیچڑ اچھالتے گئے آپ پر. حقیقت یہ ہے آپ ان لوگوں میں رہ کے نا اپنی اسپرٹ کو بنا نہیں سکتے. آپ ان لوگوں میں رہ کے اپنی گروتھ نہیں دیکھو گے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھو ایک وائرس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کرونا ایک وائرس ہے؟ نہیں، مخالفت ایک وائرس ہے. آپ بہن پڑھتے ہو نا گنتی میں کہ پہلے موسیٰ کی مخالفت کرنے والے 8-10 لوگ تھے، پھر انہوں نے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا، پھر 250-300 ہو گئے. تو یہ کیا تھا؟ ایک وائرس تھا. مخالفت ایک وائرس ہے، سرکشی بغاوت ایک وائرس کے جیسا ہے. اور لوگ بھی شریک ہو گئے، پھر پوری قوم شریک ہو گئی، وائرس کی طرح پھیل گئی ہے. تو باز رہیے ان چیزوں سے. اس لیے میں نے کہا کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ جناب لوگ مجھ سے ڈرتے گئے. کہتے گئے جھرنوں سے مگر سنگیت نہ پھوٹتا اگر راہ میں اس کے وہ پتھر نہ ہوتے، ہے نا؟ وہ چشموں سے آپ نے دیکھا پانی جب نکلتا ہے تو آواز آتی ہے نا اس کی، چشموں کی، تو اب وہ آواز نہ آتی اگر وہاں پتھر نہ ہوتے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دھن کو یاد رکھا جائے، آپ کو یاد رکھا جائے، تو پتھروں کا آنا ضرور ہے. آپ کا گیت اگر چاہتے ہو کہ لوگ گائیں تو ان چیزوں کا آنا ضرور ہے، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. لیکن عزیزو یہ بھی سچ ہے کہ جب ریزلٹس آتے گئے نا تو لوگوں کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں غلط تھا، میں ساری زندگی تجھے روکنے میں لگا رہا، ساری زندگی میں تیری مخالفت کرتا رہا، میں نے کیا پایا؟ اور تو بڑھنے میں لگا رہا، تو تو نے جو پایا ہے نا میں اسے سلوٹ کرتا ہوں اور آج میں اس کے لیے اقرار کرتا ہوں. بولو آمین. ہاللویا. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. عزیزو آپ کو نہمیاں کو یاد رکھنا ہے اور اس میسج کو یاد رکھنا ہے کہ لوگ آپ کو روکیں گے لیکن آپ کو اور پیچھے نہیں ہٹنا. لوگ آپ کو روکیں گے میں نے کہا، پر آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ خدا یہ ہمارے لیے سلیکٹ کر چکا ہے کہ پتھر آئیں تاکہ ہماری دھن بنے، ویرود آئے، مخالفت آئے تاکہ لوگ ہماری دھن کو یاد رکھیں. سب بولو آمین. ہاللویا. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنے سروں کو